Hello dear students, as you all know that our computer is made up of different type of devices that are input device, output device, processing device and different storage devices. In this video we will discuss about firstly what is input. Input can be any data or instruction that is entered by us into the computer. We can enter data using different type of devices, like with the help of keyboard we can press the key and enter the data. With the help of mouse we can select anything and enter the data. With the touch screen we can touch the screen by finger and enter data. By speaking in a microphone we can enter data. With the digital camera we can enter images into the computer, and using scanner we can enter printed paper into the computer in the form of input devices. Those devices which are used to enter all these data into the computer are called input devices. Input devices are the eyes and ears of the computer. Most commonly used input devices are keyboard, mouse, joystick, light pen, digital scanner, and so many more input devices are there, like barcode scanner, character scanner, line scanner, and so many are there. Let us discuss some of. Firstly, keyboard. A keyboard is most commonly used input device. It has alphabet keys, numeric keys. With the help of that we can enter alphabets, numbers, different type of characters or symbols with this keyboard. And to enter the data, what we have to do, we have to press that key. If we want to enter F, then we have to press F. Let us see different parts of a keyboard. Here is a numeric keypad which is used to enter numeric data. Here is the alphabets, or we can say typewriter keys, which are used to enter alphabets. These are the function keys with the combination of some other keys. These are used for some special functions. Escape key to get out from the something. Control key, shift key, window key, alt key. These are the cursor keys to move the cursor up, down, left or right. These are some extra keys to move page up, down, at the end, to insert somewhere, to delete something. We can do that from here. So mainly there are 108 means 108 keys in a keyboard, depending upon the types of the keyboard. Different types of the keyboard are, first is QWERTY keypad. QWERTY keyboard मोस्ट कॉमन है. इसमें क्या होता है, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो QWERTY फॉर्म में होते हैं, विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइपराइटर. लाइक जैसा हमारा टाइपराइटर हुआ करता था, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे कीबोर्ड QWERTY कीबोर्ड बनाए गए हैं. नेक्स्ट इज कोडलेस मीन्स वायरलेस कीबोर्ड. वायरलेस होते हैं, कोई भी वायर नहीं होती है, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना और इनके साथ काम करना इजी हो जाता है. नेक्स्ट इज ergonomic keyboards. These keyboards are designed for reduce some pain. इसमें एक स्पेशल जगह बनी हुई होती है जहाँ पर हम अपना हाथ आराम से रख सकते हैं और उसके बाद वर्किंग कर सकते हैं. इससे क्या होता है कि हमारा हाथ स्ट्रेस फील नहीं करता है. वी कैन इजीली वर्क ऑन दैट. नेक्स्ट इज गेमिंग कीबोर्ड. गेम्स के एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने के लिए नॉर्मल कीबोर्ड्स के अलावा गेमिंग कीबोर्ड स्पेशल आते हैं, जिसमें कुछ ऐसी कीज दी गई होती हैं जिससे गेम्स का एक्सपीरियंस और भी है. नेक्स्ट इज एनहेंस्ड कीबोर्ड. एनहेंस्ड कीबोर्ड वो हैं जो हम रिसेंटली यूज कर रहे हैं, जिनमें फंक्शन कीज होती हैं, एस्केप कीज होती हैं, शिफ्ट कीज होती हैं, कंट्रोल कीज होती हैं, विंडोज कीज होती हैं. तो करंटली हम जिस कीबोर्ड को यूज करते हैं दैट इज एनहेंस्ड कीबोर्ड. नेक्स्ट इज वर्चुअल कीबोर्ड. वर्चुअल कीबोर्ड कौन सा होता है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है. लाइक यू हैव सीन इन कंप्यूटर कि वहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का, जिसमें क्या होता है, वो कीबोर्ड वर्चुअली अवेलेबल होता है हमारी स्क्रीन पर, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं. लेकिन विद द हेल्प ऑफ माउस हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पर अल्फाबेट्स को क्लिक करके टाइप कर सकते हैं. तो वो वर्चुअल है.
या फिर जो हमारे मोबाइल फोन्स में कीबोर्ड होते हैं वो भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो स्क्रीन पर एक कीबोर्ड बना हुआ आ जाता है, दैट इज वर्चुअल. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर और मोबाइल फोन. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल कीबोर्ड. फ्लेक्सिबल कीबोर्ड कौन से होते हैं? सेम क्वेरिटी कीपैड होते हैं, क्वेरिटी कीबोर्ड होते हैं, लेकिन ये सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, तो इनको रोल करना या फिर इनको फोल्ड करना इजी होता है. इनको हम फोल्ड करके उसके बाद कहीं पर भी ले जा सकते हैं. मींस प्लास्टिक, फाइबर इस किसी भी मटेरियल के नहीं होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं जिनको फोल्ड करना इजी होता है. नेक्स्ट इज पॉइंटिंग डिवाइसेस. पॉइंटर क्या होता है? कोई भी एक स्मॉल सिंबल ऑन द स्क्रीन, लाइक जो हमारा एरो होता है वो क्या होता है? वो पॉइंटर है जो किसी चीज को पॉइंट कर रहा है. कहां पर अपीयर होता है? जब भी हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं वहां पर यूज होता है. लाइक विंडो हमारा GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसमें हमारे स्क्रीन पर एक एरो अपीयर होता है. पॉइंटिंग डिवाइस से क्या कर सकते हैं हम उस पॉइंटर की हेल्प से हमारे स्क्रीन को कंट्रोल करके रखते हैं कि हमें क्या एक्टिविटी करनी है. क्या क्या कर सकते हैं हम उससे? चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू हम कमांड्स दे सकते हैं, सिस्टम को कुछ करने के लिए इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइंग का काम कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप के पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन से हैं? माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सब क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस. माउस क्या है? एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है. मींस जिसमें क्या होता है? एक पॉइंटर होता है जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को. और माउस को वर्किंग के लिए एक फ्लैट सरफेस की जरूरत होती है. अगर सरफेस फ्लैट नहीं होगा तो हमारा कर्सर मूव नहीं करेगा. और ये हर तरह के फ्लैट सरफेस पे भी काम नहीं करता है. लाइक उस पर अगर हम इसे किसी क्लॉथ के ऊपर, किसी फ्लैट क्लॉथ सरफेस के ऊपर इसको चलाएंगे तो इसकी स्पीड फास्ट होगी, बजाय कि किसी मिरर के ऊपर या ग्लास के ऊपर इसको चलाएंगे. तो डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है, उस पर इसकी स्पीड भी डिपेंड करती है. इसके ऊपर 2 या 3 कीज होती हैं और एक ये रोलर बना हुआ होता है, लेफ्ट की, राइट की एंड दिस रोलर. इसमें क्या होता है? जब भी हमें कुछ क्लिक करना होता है, कुछ सिलेक्ट करना होता है, तो हम इसकी की को प्रेस करते हैं. जैसे ही हम की को प्रेस करते हैं तो वो चीज हमारी है. डिफरेंट टाइप के माउस कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज मैकेनिकल या बॉल माउस. इसमें क्या होता है? इसमें एक रबड़ की बॉल डली हुई होती है अंदर, जिससे क्या होता है? जैसे ही हम माउस को मूव करते हैं तो वो बॉल अंदर स्पिन होती है और उसी के डायरेक्शन में हमारा जो पॉइंटर है वो मूव करता है. सेंसर लगा हुआ होता है जिसके थ्रू वो सेंस कर लेता है कि बॉल किस डायरेक्शन में मूव हो रही है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा कर्सर या हमारा पॉइंटर मूव करता है. बट करंटली मैकेनिकल माउसेस आउटडेटेड हैं, इनका यूज रेयरली ही कहीं कहीं पर हो रहा है. नेक्स्ट इज ऑप्टिकल माउस. ऑप्टिकल माउस कौन से हैं? जो हम करंटली यूज कर रहे हैं. इसमें क्या होता है? जहां पर पहले बॉल लगी हुई थी उसकी जगह पर अब क्या है? LED लाइट लगी हुई है. LED लाइट डिटेक्ट करती है कि हमारी मूवमेंट किस साइड की, हम किस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं. और ये अगेन द सेम थिंग कि माउस फ्लैट सरफेस पे ही मूव करता है, लेकिन वो सारे के सारे सरफेस पे काम नहीं करता है. लाइक अगर कोई ग्लास है तो उसके ऊपर माउस वर्क नहीं करेगा. अगर कोई सरफेस प्लास्टिक का है तो उसके ऊपर भी माउस एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा. नेक्स्ट इज कॉर्डलेस मींस वायरलेस माउसेस. इसमें क्या होता है? सेम वायर नहीं होती है, बैटरी रिक्वायर होती है, बैटरी के थ्रू चलता है या फिर सम ब्लूटूथ डिवाइस हम यूज करते हैं इसको हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, जो किस पे वर्क करते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल भी कैसी होती है? माउस की जैसी ही होती है, पॉइंटिंग डिवाइस है. और माउस में क्या होता था? नीचे एक बॉल बनी हुई होती थी, लेकिन ट्रैक बॉल में क्या होता है? माउस के मतलब इस ट्रैक बॉल के ऊपर ये बॉल बनी हुई होती. नेक्स्ट इज टच पैड. टच पैड कौन सा है? जो हमारे लैपटॉप्स में होता है, 2 या 3 इंचेस का बना हुआ एक पैड जिसके थ्रू हमारे कर्सर को मूव कर सकते हैं हम. इसमें क्या होता है? फ्लैट होता है, रेक्टेंगल होता है और अगेन पॉइंटिंग जैसे माउस वर्क करता है, सेम वर्किंग इसी की है.
सेंसर लगे हुए होते हैं, जैसे ही हम उस पे टच करते हैं सेंस करता है, डायरेक्शन डिसाइड करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे सिस्टम पे मूवमेंट होती है। और कहाँ पर यूज होता है इसका मोस्टली? नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? अगेन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है, एक बॉक्स बना हुआ होता है, उसके ऊपर एक स्टिक लगी हुई होती है और उस स्टिक पे बटन्स लगे हुए होते हैं। इस स्टिक और इन बटन्स की हेल्प से हम अपने पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। मोस्टली ये वाला जो जॉयस्टिक होता है हम कहाँ पर यूज करते हैं? गेमिंग सेक्शन में। लाइक गेम्स अगर हमें कंप्यूटर पे खेलनी है तो अगर किसी डिवाइस की हमें नीड है तो दैट इज जॉयस्टिक। इस स्टिक के थ्रू हम अपने कैरेक्टर की मूवमेंट को हैंडल कर सकते हैं और इन बटन्स के थ्रू उस कैरेक्टर के डिफरेंट एक्शंस हो सकते। नेक्स्ट इज लाइट पेन। लाइट पेन भी क्या है? अगेन इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या करता है? डिटेक्ट करता है लाइट की प्रेजेंस को और क्या होता है? पेन की शेप में होता है। फ्रंट पे इसके फोटो सेल लगा हुआ होता है, जिससे क्या होता है, जैसे ही हम इसको मूव करते हैं तो डिटेक्ट होता है कि हम क्या लिख रहे हैं उसके थ्रू। और ये कहाँ पर यूज किया जाता है? मोस्टली इंजीनियर्स यूज करते हैं इसको या फिर ग्राफिक डिजाइनर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक पेन। इसको स्टाइलस भी बोलते हैं। बॉल पॉइंट पेन के जैसा होता है और डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट लिखने के लिए और लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसका यूज कहाँ पर करते हैं? ग्राफिक एप्लीकेशन में। मीन्स अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं उस टाइम पे हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं दैट इज पेन। नेक्स्ट इज डिजिटाइजर। ये क्या है? एक सरफेस होता है फ्लैट। इसमें क्या होता है? कुछ पॉइंटिंग डिवाइस होता है लाइक पेन टाइप, या फिर हम फिंगर्स के थ्रू भी टच कर सकते हैं इस पे। जैसे ही हम इसको टच करेंगे या उस पेन के थ्रू इस पे ड्रॉ करें तो सेम चीज हमारे कंप्यूटर पे ड्रॉ हो जाएगी। किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? मेनली ड्राइंग पर्पस के लिए यूज किया। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है। किस टाइप के इनपुट को देता है ये? साउंड टाइप के। मीन्स अगर हमें वॉइस एंटर करवानी है हमारे कंप्यूटर में एज ए इनपुट तो हम किसका यूज करेंगे? माइक्रोफोन का। क्या करता है? यूजर की वॉइस को रिकॉर्ड करता है और हमारे एनालॉग सिग्नल्स मीन्स जो हम बोल रहे हैं दैट इज एनालॉग सिग्नल, उसको क्या करेगा? साउंड कार्ड के थ्रू वो सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा का यूज कब करते हैं? जब भी हमें इनपुट एज अ फॉर्म ऑफ पिक्चर देना हो। लाइक हमें डिजिटल इमेज प्रिंट देनी है कंप्यूटर को एज एन इनपुट तो हम किसका यूज करते हैं? नेक्स्ट इज डिजिटल स्कैनर। डिजिटल स्कैनर को हम क्या बोलते हैं? इमेज स्कैनर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? लाइट सेंसिंग इनपुट डिवाइस है। सेंस करता है जब भी हम इसमें कोई प्रिंटेड पेपर या फिर कुछ प्रिंटेड इसके अंदर रखेंगे टेक्स्ट या इमेज जो भी, ये उसको स्कैन करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और हमारे कंप्यूटर में स्टोर करवा देगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल रीडर। ऑप्टिकल रीडर का हम यूज कब करते हैं? जब भी हम किसी पेपर पे लिखा हुआ कुछ प्रिंटेड स्क्रीन हमारे कंप्यूटर को एज एन इनपुट देना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? ऑप्टिकल रीडर का। ये क्या करेगा? वो जो भी डाटा लिखा हुआ होगा उस प्रिंटेड पेपर पे उसको स्कैन करेगा। उसको स्कैन करने के बाद उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर में स्टोर करके रख देगा। मेनली 2 टाइप के होते हैं ऑप्टिकल रीडर। वन इज बारकोड रीडर, नेक्स्ट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बारकोड रीडर एज यू कैन सी कि जब आप मॉल्स वगैरह में या फिर फूड कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग के लिए जाते हो तो वो बारकोड रीडर की हेल्प से उस कोड को रीड करके उसका प्राइस देखते हैं। वो मैनुअली प्राइस एंटर नहीं करते हैं तो वो इस डिवाइस का यूज करते हैं। एंड दिस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन लाइक हमने कोई भी हमने कोई भी एग्जाम दिया है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर लिख रहे हैं। लाइक हमें सर्कल फिल करके देने हैं एज एन आंसर। आई थिंक सम ऑफ यू हैव डन दिस इन योर ओलंपियाड ऑल्सो यू हैव डिड दिस। तो उसमें क्या होता है कि वो जो हम पेपर पे मार्क कर रहे हैं हमारे सर्कल्स, इसके थ्रू वो कंप्यूटर रीड करता है कि सर्कल्स को क्या मार्क किया गया है और उसके बाद उसको आंसर की से मैच किया जाए।
टच स्क्रीन क्या है? सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन है, जिसमें क्या करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ फिंगर हम किसी चीज को क्लिक करते हैं, और जब जिस भी एरिया पे या जिस भी ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है वो उसके कोरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करता है. आई होप all these points are clear to you. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.